الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم کون سی چیز کو خزانہ بنائیں، کون سی چیز کو اپنے گھر میں ہم اکٹھا کریں، کون سی چیز کو اسٹور کریں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ سب سے پہلی چیز، تم اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ، اپنے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج اس پر بھی غور کرو کہ آج ہم کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے تو جو دعائیں سکھائی ہیں، چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہا، سامنے والا سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، پھر اس کے جواب میں آپ کہیں یہدیکم اللہ۔ صرف ایک چھینک آئی اور آپ نے 3 بار اللہ کا نام لیا۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں، کچھ نہیں اگر آپ کو آتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں آتے ہو اور بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان پھیل ہو جاتا ہے۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتے ہو تو شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب اس گھر میں ہم رہ نہیں سکتے، یہ تو بسم اللہ پڑھ کے اندر آیا ہے۔ اور جب تم کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں تو ڈنر بھی نہیں ملے گا، اب یہاں تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، شیطان کی گھر میں انٹری ختم ہو گئی۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، شیطان آپ کے کھانے سے بھاگ گیا۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ گھر سے آپ نکل رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، مکان پہ جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، 2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں۔ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے، کوئی شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے تو شیطان اگر آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اس نے تو وہ دعا پڑھ لی کہ قد وقیتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھایا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے، اب شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک دعا کی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بنگلہ میں بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ وہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، حصن المسلم دعا کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی آن لائن اس دعا کے بارے میں بھی کچھ ایک کورس کی شکل میں اس کی ایک ایک دعا کا جو مطلب ہے اس کو ایکسپلین کر کے، اس کا مطلب بتا کر کے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر جلدی آئے گا، جس میں اس کتاب کی زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، پاکٹ سائز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ پتہ لگائیے گا، بنگلہ میں بھی ضرور آتی ہوگی۔ آپ حصن المسلم کو اپنے پاس رکھیے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کریے میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ اور جب آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر جب ہوگا تو آپ کے گھر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وہیں سے ناکام ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ جنات کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب میرے گھر میں جنات کا اثر ہے،
मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए लोग हमसे पूछते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल करके मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है। हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है। और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है, आपको पढ़ना चाहिए। सवाब भी इसी में है और शरीयत के हुक्म का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें, आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत न करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए। तो घर को अगर दीनदार बनाना है तो हमें और आपको घर में यह काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि अजान की आवाज सुनने के बाद सारे काम धंधे बंद हो जाएं, औरतें हों, बड़े हों, बच्चे हों, उनको सबसे पहले नमाज की फिक्र हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन बंदों में एक बंदा वो भी होगा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। इतनी नमाज की टेंशन और इतनी नमाज की फिक्र आपके अंदर हो कि आपका दिल मस्जिद में अटका हो। आप इशा की नमाज पढ़ के घर पे आए, आपने मोबाइल पर सुबह फजर की नमाज का अलार्म लगा लिया, सुबह फजर की अजान 5:30 बजे, 5:45 बजे होने वाली है, मुझे 5:45 बजे उठना है और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है। आप जोहर की नमाज आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी, आपको कलिया चक जाना है, आपको मालदा जाना है, आपको फरक्का जाना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 बजे फरक्का रहूंगा तो मैं असर की नमाज कहां पढ़ूंगा। आप जोहर पढ़ने के बाद असर की प्लानिंग कर रहे हैं, असर पढ़ने के बाद मगरिब की प्लानिंग कर रहे हैं। नमाज आपकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल हो जाए मेरे प्यारे साथियों। और यही नहीं, जब आप अपने घर पर रहें तो अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों को घर में पढ़ा करें। आप अपने घर के अंदर सुन्नत और नफिल नमाजें घर के अंदर पढ़ा करें। फजर की नमाज है, आप 2 रकात सुन्नत आप घर में पढ़ के तब मस्जिद में जाएं। जोहर की नमाज है, आप 2-2 रकात की, जो 4 रकात सुन्नत जोहर के पहले पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके आप घर में पहले 4 रकात पढ़िए, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए। इससे क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैति इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा हर नमाज, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, इंसान को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बच्चा आपको देख करके नमाज की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। आप मेरी प्यारी माँ बहनों जब घर में नमाज पढ़ेंगी, आपकी छोटी बच्ची, आपकी बेटी भी आपको देख करके नमाज सीखेगी। और आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे जहां कोई देखने वाला नहीं है, तो आपकी नमाज के अंदर रियाकारी और दिखावे का भी कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नमाज के अंदर इखलास पैदा होगा, आपकी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसीलिए घर के अंदर आप नमाज पढ़ें।
पढ़ें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाज आप घर में पढ़ें। और यही नहीं, आप अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबई सिनीन, तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अशरिन, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। 10 साल के बच्चे अगर हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और यही नहीं, आगे अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ, और जब तुम्हारे लड़का और लड़की 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। एक कंबल में, एक चादर में 2 लड़कों को मत सुलाओ, 2 लड़कियों को मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो। जानते हैं ये हुक्म क्यों दिया गया? ये हुक्म इसलिए दिया गया कि 10 साल का जब लड़का आपका हो गया और 10 साल की आपकी बेटी जब हो गई तो अब वो बुलूगत के करीब हो रहे हैं, अब वो यंग हो रहे हैं, अब वो टीनेज को पहुंच रहे हैं, अब जवानी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अब उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। अब शरीयत ये कहती है कि अब यहां से उनको पता लगना चाहिए कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें पर्दे में रहने का हुक्म है, अगर हम एक मर्द हैं तो फिर हमें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म है। शरीयत ने समाज को गंदगी से बचाने के लिए बच्चा और बच्ची जब 10 साल के हो जाएं वहीं से यह हुक्म दिया कि उनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में अगर हमसे और आपसे ये कहा है कि ज़िना के करीब मत जाओ, तो ज़िना के करीब ले जाने वाली जितनी चीजें हैं इस्लाम ने उन सबको रोका है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, जब तुम अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने, अपने ससुर के सामने भी अगर तुम रहो तो अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखो। क्यों कहा अल्लाह ने? क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, फला तखज़ान बिल क़ौल, ऐ मुसलमान औरत जब तुझे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करना पड़ जाए, मोबाइल पर बात करना पड़ जाए, या तेरे घर पे कोई गैर मर्द आ जाए और तुझे उससे बात करना पड़ जाए, तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लग जाए कि मेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है, ये तो बड़े कड़क अंदाज में बात कर रही है, मैं इसके ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, मैं इससे कोई उम्मीद नहीं कायम कर सकता। ये तमाम रास्ते इस्लाम ने क्यों बताए मेरे भाइयों? ताकि ज़िनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह न बचे। और इतने सब के बाद इस्लाम ये भी कहता है, जब लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाए तो तुम निकाह में देर न करो। लड़का 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गया, लड़की 15 साल से ऊपर 16 साल की, 18 साल की हो गई, शादी के काबिल हो गई। अब आप लड़के की शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप लड़की की शादी 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका वो लड़का जो 20 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में शादी के काबिल हुआ है, वो 10 साल तक क्या नमाज पढ़ करके अपने आप को गुनाह से बचाएगा? क्या वो तकरीरों को सुनकर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो उसको खाना दिया जाता है, उसको तकरीर नहीं सुनाई जाती। इंसान को प्यास लगी हो तो उसको पानी दिया जाता है, उसके सामने कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपके जवान बेटे और बेटियां शादी के काबिल हो गए हैं तो इस्लाम ये भी कहता है कि उनकी शादी में तुम देर मत करो। यही नहीं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद औरतें नाराज हो जाएं और कहने लगे कि आइंदा इस मौलवी को मत बुलाना, आइंदा इस मौलवी की तकरीर मत करवाना। ये भी सुन लो, समाज में ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये भी कहता है, अगर मर्द के पास ताकत है, पैसे वाला है और एक से ज्यादा बीवियों का वो हक अदा कर सकता है, वो 2 शादी कर सकता है, वो 3 कर सकता है, वो 4 कर सकता है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस मर्द को कर लेना चाहिए। नहीं मौलवी साहब, ज़िना कर लेना आसान है, दूसरी शादी का नाम मत लीजिए।
बीवी कहती है कि तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर तुम किसी को मेरी सौतन बना के लाओगे, मैं अपने प्यार को नहीं बांट सकती, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती। बीवी साफ कहती है तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर मैं कल मुंबई में था। मुंबई में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, 28 साल 30 साल का लड़का रहा होगा, पैसे वाला लड़का है। उसने कहा मौलवी साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई। कहा किससे करूं, कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं है। लड़की, मैंने एक ऐसी जगह रिश्ता भेजा जहां लड़की गूंगी है, लड़की बोल नहीं सकती है और गरीब फैमिली है, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब हम दूसरी बीवी के तौर पर अपनी बेटी को नहीं देंगे। ये हालात हैं इस वक्त हमारे और आपके समाज के। दूसरी शादी जो बेचारा कर सकता है उसको करने की इजाजत नहीं है। नतीजा ये है, और मैं समाज की हकीकत आपको बता रहा हूं कि कितने शादीशुदा लोग हैं जिनके शादी के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात हैं और समाज के अंदर वो चीजें चल रही हैं, लेकिन दूसरी शादी को समाज ने गाली बना दिया। कोई दूसरी शादी कर ले, पूरा समाज कहता यार ये बहुत गलत आदमी है, बहुत अय्याश आदमी है, इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसी समाज में कितने शादीशुदा लोग हैं जो अपनी जरूरत को गलत और नाजायज तरीके से पूरा कर रहे हैं और समाज में उसको कोई बुरा कहने वाला और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने ज़िनाकारी से रोका है तो इस्लाम ने उसका हल भी बताया है। इस्लाम ये कहता है शादी करो, निकाह करो। कितनी लड़कियां हैं आज 25 साल की होगी, उनके माँ बाप उनकी शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर वो लड़की कभी अपनी माँ से कह दे मेरी शादी करा दो, माँ कहती है तू बड़ी बेशर्म हो गई है, तू शादी की बात कर रही है, तू बड़ी बेगैरत हो गई है, तू शादी की बात कर रही है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आप समझदारी से काम लो, आप समझदारी से काम लो। लड़की अगर शादी के काबिल हो चुकी है, आप उसकी शादी करा दीजिए और रिश्तेदारी और शादी में आप आसानी पैदा कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का खाने कमाने वाला है, दीनदार है, बहुत अच्छा मकान नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी आमदनी नहीं है, लेकिन अगर लड़का दीनदार है, नेक है, अच्छा है, तो निकाह कर दो, शादी कर दो। जब इंसान शादी करता है, जब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत देता है। मैंने तो देखा है और महसूस किया है, इंसान जब तक शादी नहीं होती है, अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, शादी के बाद ऑटोमेटिक वो 2000 कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बीवी आती है, बीवी अपने हिस्से का मुकद्दर लेके आती है, अपने हिस्से की रोजी लेके आती है। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब औलाद होती है, जब बेटा और बेटी होते हैं, इंसान की आमदनी में और उसकी कमाई में और अल्लाह बरकत देता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी रोजी रोटी लेकर के आया है। मेरे भाई, हम और आप ये समझते हैं हम पैसा कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे हिस्से का जो मुकद्दर है, उस मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ताला ने तुमको लिखी है, तुम्हारी बीवी के जरिए, तुम्हारे बच्चों के जरिए, वो तुमको मिलती है और अल्लाह तुमको देता है। इसलिए शादी में मेरे भाइयों आप आसानी पैदा करें। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, कोई दीनदार रिश्ता मिले, तो तुम निकाह करने में देर न करो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे, चेहरे पर दाने भी थे, दाग भी था, लेकिन बड़े नेक आदमी थे। उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, जुलैबीब तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? अरे अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। मदीना के अंदर एक अंसारी साहबी थे, जिनकी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी काबिल थी, बड़ी अच्छी थी, और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। नबी अकरम ने फरमाया कि आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। साहबी ने समझा कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं।
अपने घर में ले जाना चाहते हैं। साहबी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से खुद निकाह करना नहीं चाहता, मेरे एक सहाबी हैं, मैं अपने सहाबी से तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। कहा, अल्लाह के नबी कौन है? कहा, जुलैबीब है। अब सहाबी जानते थे जुलैबीब गरीब भी हैं और बदसूरत भी हैं, चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी थी। अब लेकिन नबी का हुक्म है, सहाबी इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं थोड़ा सा लड़की की मां से मशवरा कर लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। सहाबी घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। का कौन है, किसके लिए रिश्ता भेजा है? कहा, जुलैबीब के लिए रिश्ता भेजा है। लड़की की मां भी जानती थी जुलैबीब गरीब आदमी है, जुलैबीब बदसूरत आदमी है। लड़की की मां ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, हम जुलैबीब के साथ अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर सकते, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारी लड़की के आए, हमने अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं कराई, अब हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की की मां ने साफ इनकार कर दिया। सहाबी पलट करके जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सब सुन रही थी माँ बाप की बातचीत। लड़की अपने माँ बाप के पास आती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया, आपको जुलैबीब पसंद नहीं आए, मगर जरा इस पर भी तो गौर करो, ये रिश्ता भेजने वाली हस्ती कौन है? ये रिश्ता भेजा है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या आप अल्लाह के नबी का रिश्ता ठुकराएंगे? मेरे अब्बू जान, ऐसा न कीजिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। अगर अल्लाह के नबी ने ये रिश्ता भेजा है, मुझे उम्मीद है अल्लाह इस रिश्ते को मेरे हक में बरकत वाला बना देगा, मैं इस रिश्ते पर राजी हूं। जब मैं राजी हूं तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। हजरते जुलैबीब से शादी करने के लिए तैयार हो गई वो लड़की। लड़की के वालिद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरा वाकया सुना देते हैं कि हम दोनों मियां बीवी तो तैयार नहीं थे, मगर हमारी बेटी तैयार है क्योंकि रिश्ता आपने भेजा है। अल्लाह के नबी ने फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी आइशिहा, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में तू बरकत अता फरमा, वला तजअल आइशहा कद्दन कद्दा, ऐ अल्लाह इसकी जिंदगी में कभी परेशानी और कभी दुश्वारी ना आए। शादी हो गई। जुलैबीब गरीब थे, मगर गरीब होना ये ऐब नहीं है। इंसान अगर गरीब है लेकिन दीनदार है तो आपकी बेटी की कदर करेगा और आपकी बेटी को सुखी रखेगा, और इंसान अगर अमीर है और दौलत वाला है लेकिन दीनदार नहीं है तो आपकी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। जुलैबीब की शादी हो गई और जुलैबीब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियां बीवी रहते थे। मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में आप दीनदारी को तरजीह दो। लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। बाकी अगर कमजोर है, माली एतबार से कमजोर है, रुपये पैसे में कमजोर है, या आपके खानदान और आपके स्टेटस के मामले में कमजोर है, लेकिन अगर दीनदार है और बाखलाक है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं निकाह कर दो और देर मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने घर का माहौल इस्लामी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में सबसे पहले रिश्ता नाता दीन की बुनियाद पे करना होगा। और आगे बढ़िए। शादी हो गई, अब लड़की आपके घर में आती है और अब उसके बाद मियां बीवी आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जाहिर है मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत भी होगी और कभी कभी झगड़े भी होंगे। कभी शौहर की कोई बात बीवी को बुरी लगी, कभी बीवी की कोई बात शौहर को बुरी लगी। अब यहां इस्लाम क्या कहता है इसको भी आप जरा समझ लें। इस्लाम ये कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा। औरत को ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने शौहर के ऊपर हुक्म नहीं चलाना है, मुझे अपने शौहर का हुक्म मानना है। अल्लाह ताला ने मेरे शौहर को मेरा निगरां बनाया है। अगर घर को एक स्कूल मान लिया जाए तो स्कूल का प्रिंसिपल जैसे होता है वैसे घर का प्रिंसिपल मर्द है और मर्द को अल्लाह ने घर का जिम्मेदार बनाया है।
اگر گھر کو ایک گاڑی بنا لیا جائے تو بیوی اس گاڑی پر بیٹھی ہے اور ڈرائیور اس گاڑی کا شوہر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں عورت کے اوپر مرد کو نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ رات کے 12 بجے مرد جو ہے وہ گھر سے نکل کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں جاتی ہے، عورت نہیں جاتی ہے، عورت کمزور ہے۔ اور یہ عورت کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ بہت سارا ایسا کام ہے جو عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ مرد کے شریر میں طاقت ہے، لیکن عورت کے آنسوؤں میں طاقت ہے، عورت کے جذبات میں طاقت ہے۔ عورت اپنے جذبات کے ذریعے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی، فرعون کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیسا آدمی تھا؟ لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا کہ برا تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا فرعون۔ فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے چیک کرو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگر لڑکا ہے تو کل ہم، اس کو قتل کر دو، مار ڈالو، اس کو مرڈر کر دو اس کا۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ مجھے تو بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر فرعون کو پتا چلے گا تو میرے بیٹے کو مروا ڈالے گا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ کی ماں تو پریشان مت ہو، تو اپنے بچے کو دودھ پلا اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کر کے تو پانی میں ڈال دے۔ غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو تو پانی میں ڈال دے۔ موسیٰ کی ماں ظاہر ماں تھی، ماں کا کلیجہ کیسے مانے گا کہ اپنے بچے کو میں پانی میں ڈال دوں؟ مگر اللہ نے موسیٰ کی ماں کے کلیجے کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا۔ اور جب پانی میں ڈالا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ جا تو دیکھ تیرا بھائی کہاں جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر تو میں نے عمل کر دیا، لیکن تو دیکھ کہ یہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اب موسیٰ پانی کے اندر جا رہے ہیں اور بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے تو بہن سے محبت کرو میرے بھائی، یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ جن کی بہنیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، بہنوں کو بھائیوں کی اور بھائیوں کو بہنوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ موسیٰ کی بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اب یہ صندوق تیرتے تیرتے پانی کے اندر چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، اچھا آسیہ جب لکھیں گے نا تو اردو میں لکھیں گے جب تو الف سے لکھیں گے، الف مد آ اور چھوٹی سین سے، اور عین سے آسیہ لکھتے ہیں، عین الف زبر آ اور سواد سے لکھیں گے تو اس کے معنی ہو جائے گا نافرمان عورت۔ تو آسیہ عین سے نہیں ہو سکتا، کسی لڑکی کا نام اگر آپ رکھیں تو آسیہ رکھیں الف سے، آسیہ۔ انگریزی میں تو سیم رہے گا، ہندی میں تو سیم رہے گا، بنگلہ میں تو سیم رہے گا، مگر اردو میں عین اور سواد کے ساتھ غلط ہو جائے گا اور الف اور سین کے ساتھ صحیح رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ کی جب صندوق پہنچا وہاں پہ تو فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر صندوق جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے صندوق میں۔ نوکرانی گئی، صندوق کو نکالا، صندوق کو کھولا، اتنا خوبصورت پیارا بچے کو لے کے آئی۔ حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پاس فرعون کے پاس آئیں۔ فرعون تو ایسے ہی بچوں سے ڈرتا تھا، جب سے اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تیرے دور حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تجھے قتل کرے گا، تیری حکومت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا، تبھی سے وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری بیوی بچہ لے کے چلی آئی، وہ آرڈر دینے والا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا،
کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اس بچے کو آپ قتل نہ کروائیے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بچہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہمیں اللہ نے، ہم بے اولاد ہیں، ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، مگر بیوی نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی تو پتھر دل فرعون بھی موم بن گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کی بات مان گیا۔ یہ عورت کی طاقت ہے، عورت اگر چاہے تو فرعون جیسے پتھر دل کو بھی موم بنا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا مگر بیوی کے آگے موم بن گیا، اور آج بعض شوہر تو فرعون سے بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو بیوی سے قاعدے سے بات تک نہیں کرتے۔ میرے بھائی، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کوئی نوکر اور آقا کا رشتہ نہیں ہے۔ شوہر کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں اور میری بیوی میری نوکرانی ہے۔ شوہر تھک کے آیا، بیوی سے کہا چل میرے پیر میں مالش کر۔ بیوی بیچاری دن بھر کی تھکی ہے، کچن میں کام کیا، اس نے گھر کی صفائی کی، کپڑے دھوئے، سارے کام کیے۔ بیوی بیچاری وہ یہ کہنے کا کبھی حق نہیں رکھتی کہ میرے پیر میں آج بہت درد ہو رہا ہے، آج کوئی میرے پیر میں بھی تیل لگا دے۔ وہ تو نوکرانی ہے، شوہر تو آقا ہے۔ معاف کیجئے، اگر آپ نے یہ رشتہ گھر میں بنایا ہے یہ میرے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے اور آپ اس کے مالک نہیں ہیں، بیوی محبوبہ ہوتی ہے اور آپ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، نوکرانی اور مالک کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کبھی بیوی کے کام آ جائیں، کبھی آپ سنڈے ہے، گھر میں چھٹی ہے، اگر آپ نے گھر کی صفائی میں کچھ بیوی کا ہاتھ بٹا دیا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی ناک نہیں کٹ جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کانا یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے آپ، ویقلی ثوبہ، اپنے کپڑے میں بٹن وغیرہ لگانا ہوتا تھا آپ خود لگا لیتے تھے، اور اپنے ضروری کام آپ خود کر لیتے تھے، اور آپ اپنے گھر والوں کے کاموں میں سپورٹ کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رشتے کی یہی خاصیت ہے، اس کو محبت کے ساتھ آپ چلائیے، اور اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً طلاق 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 کہہ کر کے جو رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ارے طلاق تو بہت بات کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو کہ بیوی نے آج کھانا خراب بنایا ہے، آج اس نے کپڑے پر پریس رکھ کر کے کپڑے کو جلا ڈالا ہے، لیکن کم سے کم تمہارے بچوں کی اچھی پرورش تو کر رہی ہے، کم سے کم وہ بے حیائی اور بے پردگی تو نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ ان کریہ منھا خلقا رضیہ من آخر، خبردار کوئی مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو، اپنی بیوی سے الگ نہ ہو اور طلاق نہ دے اور بیوی کو الگ نہ کرے۔ اگر اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگے گی۔ تو اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیے۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک آئیڈیل شوہر بنیں، ایک آئیڈیل بیوی بنیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ سماج کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت مسکرا کے ملتے ہیں، مگر جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ بڑا خراب ان کا رویہ ہوتا ہے، بڑا روکھا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ معاف کیجئے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، میری پیاری ماں بہنوں، سب سے بہترین عورت کی 3 نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آپ شادی میں جا رہی ہیں،
बेहतरीन साड़ी पहनकर, सज करके संवर करके आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, सज करके संवर करके, लेकिन जब शौहर घर में आता है तो बाल में कंघी तक नहीं करती हैं, चेहरे पर क्रीम तक नहीं लगाती हैं, बदन में खुशबू तक नहीं लगाती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके मेकअप का और आपकी जीनत का और आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हकदार तो आपका शौहर है। अल्लाह के नबी फरमाते कि बेहतरीन बीवी वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। वो बीवियां कामयाब होती हैं और उन बीवियों की मिसाल दी जाती है जब शाम को शौहर घर में आने वाला होता है, वो अपने शौहर के लिए तैयार होती हैं, अपने शौहर के लिए रेडी होती हैं। अगर आप अपने शौहर के लिए वाकई में अपने आप को तैयार कर लें, मैं गारंटी देता हूं शौहर कभी किसी दूसरे की औरत की तरफ देखेगा भी नहीं, अगर आपने उसका हक सही तरीके से अदा किया। और दूसरी चीज, वतुती उज़ामर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी माने, शौहर का हुक्म बीवी माने, शौहर का हुक्म माने, शौहर पर अपना हुक्म न चलाए। और तीसरी चीज, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर की पीठ के पीछे अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने माल की, शौहर के माल की हिफाजत करे। शौहर का पर्स हाथ में लग जाए, शौहर का एटीएम कार्ड हाथ में लग जाए तो बिल्कुल बेदर्दी के साथ उसको खर्च ना करे, शौहर के मेहनत से कमाए गए पैसे की कद्र करे और उसकी हिफाजत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये तीन काम जो औरत कर ले वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। अब दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बेहतरीन शौहर कौन सा होता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अंतुत इमहा इज़ा तइमता, तुम तो जाके कलियाचक में रसगुल्ला खा रहा है और तुम्हारी बीवी बेचारी घर में दाल चावल खा रही है, दाल भात खा रही है, ये मुनासिब बात नहीं है। जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो, जिस स्टैंडर्ड और जिस मेयार का तुम कपड़ा पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी भी बीवी के ऊपर गुस्से में हाथ मत उठाओ, उसके चेहरे पर कभी मत मारो। कभी गुस्सा आया, अपने आप को कंट्रोल रखो, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई नौकरानी नहीं है, उसके चेहरे पर कभी हाथ मत उठाओ। वला तुकब्बे, और गाली गलौज से बात मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी गुस्सा आ जाए, घर की बात घर के बाहर न जाए, उसको औरत को कभी घर से मत निकालो। यह औरत का हक है मेरे प्यारे साथियों। अगर इन चीजों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल दीनदारी वाला बनेगा। अब आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। घर के माहौल को अगर आप इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं तो एक जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए आप दुआ करें। और कुरान में 2-3 दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई हैं। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह फरमाता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तो मुत्तकियों का इमाम हमको बना दे। ये दुआ आप याद कर लीजिए। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो नेक होगी, जब वो दीनदार होगी। आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगा? जब आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे और देखेंगे आपका बेटा पहली सफ में खड़ा है, तो आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। मेरे भाइयों, वो फैमिली और वो परिवार वो मिसाली होता है जहां शौहर और बीवी नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीम अल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है, मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है
और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई, आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं। क्यों? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं, हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? जब इन लोगों ने मैं खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है, वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकाना तहतहु कन्जुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कन्जहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो दो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। दो यतीम बच्चे थे जिनके बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते, लेकिन उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था, वो बहुत नमाजी था, वो बहुत अल्लाह वाला था। उस नेक बाप की औलाद अपने बाप के खजाने से महरूम हो जाए, ये अल्लाह ने गवारा न किया। और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब वो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना वो हासिल कर लें। पता ये चला कि अगर बाप नेक है और बाप अगर दीनदार है तो उसकी नेकी का बदला, उसकी नेकी का फायदा उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों को मिलता रहेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उनका छोटा बेटा उनके पास लेटा रहता था, सोया रहता था, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बेटे को देख करके कहते थे, मिन अजले का या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात में उठ करके तेरा बाप अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, तेरे लिए रो रहा है, तेरी खातिर रो रहा है, ताकि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, तेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में तुझको जगा दे। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने किरदार पर मेहनत करें मेरे भाई, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप सच्चे हैं, आपके बच्चे भी सच्चे होंगे। मेरी माओ और बहनों, अगर आप दीनदार और
पर्दे में रहेंगी, आपकी बेटी भी आपसे पर्दा सीखेगी। अगर आप सच बोलेंगी, आपकी बेटियां आपसे सच सीखेंगी। आप नमाज की पाबंदी करेंगी, आपकी जवान बेटी भी हर टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ेगी। माओं से उनकी बच्चियां सीखती हैं और बेटे अपने बाप से सीखते हैं। तो पहले आप खुद अपने आप को संवारें और सुधारें। 4-5 मिनट है, आपके हाथ में चंदा देंगे। अच्छा, लास्ट में अलाउंस कर दीजिएगा। अच्छा, तो आप अपने आप को पहले सुधार लें और इस्लाह कर लें। अगर आप नमाजी हो गए मेरे प्यारे भाइयों, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नमाजी होगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, इसीलिए उलमा कहते हैं कि चंदा वगैरह भी अपने घर की औरतों से करवाना चाहिए, अपने बच्चों से करवाना चाहिए। सदका और ज़कात अपने बच्चों से दिलवाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा हो। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं घर की इस्लाह के ताल्लुक से। अभी मुझे ये हुक्म दिया गया, क्योंकि आज का ये जलसा एक मदरसे के लिए, एक इदारे के लिए ना, ये मदरसे का चंदा है, जलसा है। और आपने अब तक काफ़ी इसमें चंदा दिया भी है। और चूँकि मैं तो आमतौर से चंदा नहीं करता हूँ, लेकिन अभी आखिरी टाइम है, जाते जाते जो भी आपकी जेब में आप खाली करके यहाँ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप इस नेकी के काम में आप जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मेरे भाई, आपका ये इन्वेस्टमेंट अल्लाह के इस दीनी इदारे में, इस मदरसे में इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आइए और जाते जाते इस इदारे को आप अपना ताउन देते हुए चलिए। मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ कि जिन भाइयों ने अपना अपना ताउन दिया है और मदद की है, इस इदारे की दान दिया है, अल्लाह उनके दान को कबूल करे। हमारी माएँ बहनें और हमारे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग, जिन लोगों ने भी